Good afternoon to all my dear, very dear children of class 11th. So, let us come back again for the very informative class of chemistry, structure of atom. As we have done Max Planck quantum theory of radiation, we have discussed the wave nature of electromagnetic radiation as well as the particle nature of electromagnetic radiation. All this we have done. So, today as we know the formulas well, so we have to start the numericals of what? Max Planck quantum theory of radiation. So, again a very good afternoon to all of you, and I know that many of you have registered. So, you are having a lot of faith in us. So, we are giving you the same, and the remaining one, please register yourself very fast as soon as possible. I do not want that any one of you miss the first registered class, which will be in the first week of July. The date I will finalize it and I will give it to you maybe within 3-4 days. So, all of you be in spirit of having a very good class today, as well as the registered class where you have to get many things extra. As you have the assignment, you have the test, you have the objective test, you have extra classes, you have the duration of the class will be more, interaction period, live classes, many extra things. If you want any detail, you can call us and we will give you like extra details of this. So, let us start today. Now, the first question which we have to solve today for the Max Planck quantum theory of radiation, the numerical, you please start writing, all of you. Right. Calculate the energy of 1 mole of photons. Calculate the energy of 1 mole of photons of radiation whose frequency is 5 into 10 to power 14 hertz. 5 into 10 to power 14 hertz. Let us start the numerical together. First you finish writing very fast the numerical, and then we will start solving it together. As in the previous class, I have given to you few numeric formulas. Like I have given to you E equal to H into mu, where E is the energy of radiation, mu is the frequency of radiation, and H is the Planck constant. Its value is 6.626 into 10 to power minus 34 joule into second. This we have done. Then I have told you that this is E equal to H mu is for 1 photon. If you want for many number of photons, you have to put in the formula E equal to N, capital N H mu, where N is number of photons. Now, in this special question, they have given to us 1 mole, a very good approach here. When they said 1 mole, mean in our case N will be equal to Avogadro number, because we know well that in 1 mole of anything, maybe rupees, maybe chairs, maybe anything, in 1 mole of anything we have Avogadro number of items, that is 6.023 into 10 to power 23. So, with this note we can start our numerical. Now, for the answer, what we have to write first? We will be writing the formula NH mu, and you know that the formula carry 1 mark. This is a special thing that you have to remember. If you continue solving the numericals as I am giving you the instruction about the marking, 100% you will be getting full marks in any numerical, whatever it is 11, whatever it is 12. Now, so E equal to NH into mu. Remember well, nothing is given to you except frequency, but the other data you should know it with yourself. As Avogadro number, you know it from 9, and H I have given to you in the previous class. So, let us substitute on the formula. So, E equal to, as we know that N equal to 6.023
into 10 to power 23. When we multiply this by h, that is blank constant, so it becomes 6.626 into 10 to power minus 34. Multiplying by frequency, you will be getting 5 into 10 to power 14. Okay. So, this is the substitution of the formula E equal to NH mu. N is Avogadro number, H is the non-data, and frequency is given. It is given in hertz, so no problem, because joule into second और पर सेकेंड हर्ट्स एंड सेकेंड, तो the यूनिट सेम है, तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका हाफ मार्क मिल गया हमें, दिस क्वेश्चन इट इज ऑफ 2 मार्क्स, इफ इट इज हाफ मार्क यहाँ मिल गया, देन वी विल बी सॉल्विंग एंड गेटिंग द फाइनल आंसर. अब फाइनल आंसर के लिए जैसे 6.023 है, इसको 6 भी कर सकते हैं अपन. 6.626 है, इसको हम 6.6 को हम 7 नहीं कर सकते, इसको हमें 6.6 ही लेना पड़ेगा. जो पावर है 23 और 34, वो आपको सबको पता है कि नॉर्मल माइनस कर सकते हैं आप, तो आपके पास आंसर आएगा. और ये 14 भी है, तो पावर आप एक साथ ले सकते हैं. सो आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, आई थिंक वी आर नॉट सपोज टू वेस्ट द टाइम इन कैलकुलेशन, बिकॉज इट विल टेक टाइम एंड वी नो नीड फॉर दैट. सो वी आर गेटिंग द आंसर इन द बुक 199.51. They have given the answer in the book 199.51 kilojoule per mole. But you should keep in mind again that answer आपका जूल में आएगा, किलो जूल में नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि इसकी यूनिट काय में होगी, जूल इंटू सेकेंड, एंड दिस वन पर सेकेंड. ओके, तो सेकेंड एंड पर सेकेंड विल कैंसिल एंड देर इज नो एनी लाइक दीज आर मोल्स ओनली, तो जूल पर मोल. बट they have given it in kilojoule. Why I want to give you in kilojoule also? Suppose in the question they ask you calculate the energy in kilojoule per mole of 1 mole of photons. तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए. वैसे कोई भी टेंशन नहीं है, अगर हमें किलोजूल में पता है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर तो जूल में आंसर हमारा जो एक्चुअल आंसर आएगा वो हमारा काय में आएगा, जूल में ही आएगा. करेक्ट. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया. जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा. तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, 100 इंटू 1000 कर दीजिए आप. ये 2 ज़ीरो आपके, ये 2 ज़ीरो से कट गए. अब 199, तो ये हो जाएगा 1995.1 जूल पर मोल. नाउ द आंसर में हाफ नंबर सही आंसर का और हाफ नंबर आपको बेटा यूनिट लिखने का मिलता है. एंड यू शुड राइट नॉट ओनली जूल, यू हैव टू राइट जूल्स पर मोल, क्योंकि एक मोल का फोटोन का मतलब पूछा गया है, तो जूल्स पर मोल. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन न्यूमेरिकल्स. अपन धीरे धीरे पढ़ना है न्यूमेरिकल की तरफ. पहले आसान करते करते ज़रा से ये आगे लेवल बढ़ा, अब और धीरे धीरे बढ़ेगा. और मैंने पहले से ही बताया है कि न्यूमेरिकल्स में आप घबराएंगे नहीं. जैसे ही आप रजिस्टर्ड क्लासेस में आएंगे आपको मतलब असाइनमेंट भी मिलेंगे, साथ में टेस्ट भी मिलेंगे, तो आपके न्यूमेरिकल्स वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. ठीक है. नाउ सो दिस इज द आंसर. फिनिश राइटिंग द आंसर वेरी फास्ट. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट box and I will give you the answer. So please take care and finish writing. Hurry up. We have to solve another numerical. Finish writing. The next question again is very good question and very like a new idea is there in this question, a good one. Let us start writing the next question. Have you finished? Of course you have finished it because very much time is not required for this question. Now, so can you start writing? I will dictate till I am rubbing the board. Calculate, sorry, 100 watt bulb. Write in this way, 100 watt WATT, 100 watt bulb. I think all of you know that the unit of power, as you know from your physics of 10th and 9th, that unit of power is watt. So what you have written? 100 watt bulb, 100 watt bulb emits 100 watt bulb
emits, हो गया, light of wavelength, emits light of wavelength 400 nanometer, 400 nanometer. Okay, calculate हो गया the number of photons, calculate the number of photons emitted per second by the bulb. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. Again I will repeat the question if anything is missing. 100 watt bulb emit light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted by the bulb in 1 second या per second. A very good question again, और थोड़ा सा नया. अब जैसे बुक के अंदर हमें अभी सिर्फ एक फॉर्मूला दिया हुआ है मैक्स प्लैंक का कि एन एच म्यू या एन एच सी बाई लेमडा या एच म्यू. यहाँ पर ज़रा से मतलब स्टार्ट होता है कि आपको समझना है अपने आप. जैसे कि आप समझते हैं पावर होता क्या है. पावर एक यूनिट है, मतलब जैसे एनर्जी की एक यूनिट जूल है, ऐसी पावर की एक यूनिट है वॉट. ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का एक फॉर्मूला है जो कि किताब में नहीं दिया हुआ है. कहीं भी आप एनसीईआरटी में देखोगे आपको किताब में ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा. वो फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी ऑफ रेडिएशन. अगेन नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ रेडिएशन. ये फॉर्मूला हमारे पास है. अगर जिस बच्चों को ये फॉर्मूला पता है उसको बहुत इजी लगेगा. क्यों? क्योंकि पावर की यूनिट दी हुई है उसमें, लेकिन पावर दिया हुआ है मतलब मैग्नीट्यूड, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड में पावर के साथ नीचे क्या लगेगा, एनर्जी ऑफ रेडिएशन. एनर्जी ऑफ रेडिएशन हमें खुद निकालना है. वी नो एनर्जी ऑफ रेडिएशन E इक्वल टू वॉट, E इक्वल टू एच म्यू, और म्यू को खोलोगे तो एच सी बाई लेमडा, एंड लेमडा इज गिवन टू अस. करेक्ट. तो थोड़ा सा मतलब अप्रोच को आगे बढ़ा रहे हैं अपन. तो अपन एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि वो एक फॉर्मूला मैं मतलब आपको ऐसा रूल की तरह आपको एक फॉर्मूला दे ही देती हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं होए. ठीक है, तो आपसे मांगा है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड. तो ऑल ऑफ अस स्टार्ट राइटिंग द फॉर्मूला फर्स्ट. द न्यूमेरिकल इज रिटन आपके पास है. नाउ राइट नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर of photons, number of photons emitted by the bulb, number of photons emitted by the bulb equal to energy, equal to power, okay, divided by energy of radiation. तो उसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम उसको डिवाइड कर रहे हैं बाय एनर्जी ऑफ रेडिएशन. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इट इन अ बॉक्स, बिकॉज वेन एवर यू हैव एनी फॉर्मूला, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, यू हैव टू कीप द फॉर्मूला इन अ बॉक्स. तो वो हमें हमेशा जब हम पढ़ेंगे तो हमें याद भी आ जाता है कि भाई ये फॉर्मूला हमें मिला था. तो अगेन आई रिपीट, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय द बल्ब इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू पावर divided by energy of radiation. So this is the formula. फॉर्मूला को एक दो दफ़ा याद कर लो ताकि वो फॉर्मूला आपको रट जाए. Now our power is given to us 100 watt. Now what I want to do, I want to detect the energy of radiation. So all of us do it fast together. Now energy of radiation जब हमें निकालना है, यानी E हम कह सकते हैं energy of radiation को, उसका फॉर्मूला आई नो दैट यू नो इट, एच म्यू. इसको अगर हम खोल के लिख रहे हैं तो E हमारा हो जाएगा एच सी बाई लेमडा. तो पहले हमने E इक्वल टू एच म्यू लिखा, फिर हमने लिख दिया E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा. अब ध्यान से समझेंगे आपके पास H है, C आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लाइट है, यानी इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. Nobody will give you the velocity of light. It is 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये सब जब भी मैंने कहा है जितने भी डाटा है ना वो सब याद करना है. देन वेवलेंथ का ध्यान रखेंगे आप बहुत अच्छी तरह, क्योंकि आपको
मैक्स ब्लैंक कांस्टेंट बेटा जूल इनटू सेकंड है ना, और जूल के अंदर क्या होता है आपको पता है, मास जो भी लिया जाता है वो मीटर में लिया जाता है। अगर जूल को खोलोगे तो जो मास लिया जाता है वो जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास केजी में सॉरी और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में, तो मतलब जूल जहाँ भी दिखे वहाँ मीटर होना ज़रूरी है। ये एक छोटी सी ट्रिक दे रही है अमीना मैडम आपको, आप याद रखना कि जहाँ भी जूल है वहाँ पर वेवलेंथ की यूनिट काय में आना चाहिए, मीटर में। तो हमें नैनोमीटर में दी है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमें 400 नैनोमीटर दी है तो ऑल ऑफ अस नो कि इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो वॉट एवर द वैल्यू गिवन टू मी आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 10⁻⁹। जब इससे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरा वेवलेंथ आ गई काय में, मेरी वेवलेंथ आ गई मीटर के अंदर। नाउ एच आई हैव, सी आई हैव, लैम्डा मैंने कर लिया कन्वर्ट। अब मैं ई निकालूंगी, जो मेरी एनर्जी ऑफ रेडिएशन आएगी मैं यहाँ उसको डिवाइड करूंगी, पावर ऊपर लिखेगा 100, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट अस डू द नीडफुल। नाउ ई इक्वल टू एच के बदले हम लिख रहे हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये हमारा एच हो गया। वेलोसिटी ऑफ लाइट मेरी हो गई 3 इंटू 10⁸। ओके, अब हमारा डिवाइड करा, वेवलेंथ मेरा हो गया 400 इंटू 10⁻⁹ ऑफ मीटर, ये मेरा जूल इंटू सेकेंड है, और ये मेरी मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी वेलोसिटी ऑफ लाइट भी मीटर में है, एंड यूनिट्स सेम होना चाहिए। और मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छी तरह बता दूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम में सबसे मेन पार्ट होता है कि मतलब जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत टफ नहीं आते कि बहुत ही बिल्कुल हाई लेवल के हैं, लेकिन उनमें यूनिट कन्वर्जन ज़रूर होता है, उसका आप सबको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो अब अपना ये हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मीटर से मीटर चला जाएगा, ठीक है, और जूल इंटू सेकेंड में ये सेकेंड से पर सेकेंड चला जाएगा, आंसर मेरा जूल में आ जाएगा। अब आप कहोगे कि मैडम वो तो ठीक है बट हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल दिक्कत नहीं आना चाहिए बेटा, थर्ड क्लास से मल्टीप्लाई डिवाइड अपन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। जैसे 10⁻⁹ ऊपर 10⁻+9 से चला जाएगा, 8 और 9 17 हो जाएंगे, 17 में से आप 34 हटाओगे तो आंसर आएगा -17। तो जैसे अपन का आंसर आया फॉर एग्जांपल 10⁻⁻17 पावर का बोला, अगेन ये -9 ऊपर गया +9 में, 8 और 9 कितने हो गए 17 और 17 34, ये माइनस में है तो आंसर -9 में आ गया। अब जैसे किसी ने कहा कि यार मैं एक काम करता हूँ, ये 400 है मेरा, तो 400 भी तो अपने 2 जीरो है, मतलब 10⁻2 है ये भी। अगर कोई ऐसे करेगा तो 10⁻2 तो ये कितना हो जाएगा -7 है ना, -7 जब ऊपर जाएगा तो कितना +7 हो गया, तो कितना हो जाएगा 15 में से जब 34 आप हटाओगे तो आपके कितने हो जाएगा बताओ, 15 में से 34 तो आपका 19 है ना, तो ये -19 भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये 2 जीरो भी काउंट कर लिए, अब आपके कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 6.626 इंटू आप 6.6 ले लो इंटू 3 कर लो अलग से और डिवाइड कर लो 4 से। इतना काम तो हर बच्चा कर लेगा क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पावर को सिंप्लीफाई कर दिया तो सभी कर लेंगे। इसका आंसर आ रहा है 4.969, इसका आंसर ये आ रहा है 4.969 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ जूल। ठीक है, ये आंसर आपका ई का आ रहा है। तो आपने एनर्जी ऑफ रेडिएशन निकाल ली है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही बिकॉज यू नो द फॉर्मूला वेल। विच फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई नाउ? नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by the bulb equal to power upon energy of radiation. So we can say number of photons emitted equal to, now what is we will write power. Now power equal to 100 divided by 4.969 into 10⁻⁻19 joule. Okay beta, so please write down this, and then you should remember also one thing that what is power. ये तो अपन ने जैसे 10 में पढ़ा हुआ है, but what is power actually? It is energy per time, मतलब उसकी यूनिट क्या होगी
जूल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, क्या पूछा है तुमसे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय द बल्ब इन 1 सेकेंड, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड मांगा है। और यहाँ पर अगर हम यूनिट लिख रहे हैं तो जूल पर सेकेंड है, पता है ये बात तुम्हें, क्योंकि पावर की यूनिट होती है एनर्जी पर व्हाट टाइम। तो अब इस तरह से अगर तुम देखोगे तो ये जूल और जूल कट गए, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ समझा रही हूँ मैं, मतलब ये चीज़ कोई भी नहीं समझाएगा, मैं तुम्हें पक्का बोल रही हूँ। नॉर्मली क्या चलता है कि शीट उठा के दे दी, अब आप उसके आंसर बच्चों को आते हैं कि नहीं आते किसी को मतलब नहीं है, और जब बच्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है तो सोचता है टिक लगा देगा, बट जब सब्जेक्टिव करता है वो बच्चा तो वो परेशान होता है। और इस पैंडेमिक में सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर आपको एक एक वर्ड बता रहा है। ये है हमारी स्पेशलिटी डीएससी क्लासेस की, जो ये समझता है, जिसको फेथ है वो 100% रजिस्टर ऑलरेडी करवा चुका है, और जिसको अभी थोड़ा सा भी ज़रा सा भी एक वो है कि डिलेमा, तो वो डिलेमा छोड़ो, इस जैसा तुम्हें एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। और ये तो बेटा मतलब अभी एक चैप्टर का ए बी है, आप रजिस्टर्ड तो हो, फिर देखना आपको कितना डिटेल में और एक्स्ट्रा टाइम दे के पढ़ाया जाएगा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, कि जब ये हुआ तो हमारा यूनिट आएगी, आप होगी मेरा नंबर ऑफ फोटॉन्स की यूनिट पर सेकेंड क्यों आ रही है, क्योंकि हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय द बल्ब इन 1 सेकेंड, तो पर सेकेंड में ही आएगी। तो अपन आखिर में लिखेंगे, ये हो गया। अब इसका आंसर हम लिख रहे हैं, तो इसका आंसर आ रहा है 2.012 इंटू 10 टू पावर 20 पर सेकेंड, 2.012 इंटू 10 टू पावर 20 पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूज होंगे कि मैडम आपने तो 2.012, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप 2 भी निकालोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज आफ्टर 2 0 के बाद 1 है, वो कैरी भी नहीं होगा। तो इफ यू विल गेटिंग द आंसर 2 इंटू 10 टू पावर 20, यू विल बी गेटिंग full marks. So what the message I want to convey to you, we have started with chemistry, अपन ने बिल्कुल बच्चों वाला पढ़ा था पहले, इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज, अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे आज जो न्यूमेरिकल मैडम ने करवाए हैं, आप घर जाके, आपकी मतलब स्पेशलिटी ये है कि आप उसको घर जाके सॉल्व करो एंड डिटेक्ट द फाइनल आंसर, बिकॉज यू कांट सॉल्व इट नाउ, अदरवाइज इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो आपको सब मेथड बताया जा रहा है, यू हैव टू सॉल्व इट मैथमेटिकली इफ यू वांट फुल मार्क्स, बिकॉज अगेन दिस क्वेश्चन फॉर द फॉर्मूला हाफ मार्क, जैसे ये क्वेश्चन आपका अगर 3 मार्क्स का है तो फॉर्मूले पे आपको हाफ मार्क मिल गया, यहाँ पर आपको ये कन्वर्जन पे भी हाफ मार्क मिल गया, जैसे अगर आपने ये कन्वर्जन कर लिया है सही तो यहीं पर मिल जाएगा वो, तो यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले पे भी हाफ मार्क मिलेगा और यहाँ पर आपको हाफ मार्क। अब ये पूरा हाफ मार्क करते करते आपके पास 2 हो गए, आखिर में आपका ये हाफ और यहाँ पर भी आपको यूनिट का हाफ। तो मतलब कंक्लूजन ये है कि हो सकता है कभी हाफ को यहाँ दे दे, कभी यहाँ दे दे, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो सिस्टम आना चाहिए कि हमें न्यूमेरिकल कैसे उठाना है ताकि उसमें हमसे गलती नहीं हो। जल्दी से कंप्लीट कर लें न्यूमेरिकल, हरी अप चिल्ड्रन, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, लेट अस फिनिश द न्यूमेरिकल फास्ट। ओके, नाउ आफ्टर दिस लेट अस टेक एन अदर न्यूमेरिकल। जब तक आप ये लिख रहे हैं मैं ऊपर का मिटा रही हूँ ताकि आप नीचे का जल्दी से लिख दें। ओके, हरी अप। अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, जिसका फॉर्मूला बुक में नहीं था, लेकिन अपन ने क्योंकि कर लिया है और अपन ने अब याद भी कर लिया है कि हम एक फॉर्मूला याद करेंगे, जिस फॉर्मूले का नाम है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय द बल्ब इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी ऑफ रेडिएशन। नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय द बल्ब इक्वल टू व्हाट, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ रेडिएशन। Let us start the next numerical. The next numerical कह रहा है when radiation of wavelength, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, write fast. When radiation of wavelength 300 नैनोमीटर, ठीक है, जब रेडिएशन कितनी वेवलेंथ का 300 नैनोमीटर falls on the surface of sodium, तो अगेन आई रिपीट, when radiation of wavelength, कितना इस दफा कह रहे हैं वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, सो व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, मतलब वेवलेंथ आपको 300 नैनोमीटर दी है, लिखते जाओ, पूरा नहीं लिख रही मैं यहाँ ताकि टाइम बचाऊं। व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, falls on the surface of sodium
electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 to power 5 joule. Kinetic energy of 1.68 into 10 to power 5 joule per mole. ओके, जूल पर मोल इतने एनर्जी से निकला है. नाउ व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड? व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम? व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम? अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड to remove the electron from sodium? Okay, what is the question mark? फिर एक और पार्ट है, what is the maximum wavelength? What is the maximum wavelength? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted okay? So please finish writing fast. Okay, so again I will repeat the question once more if anything is missing. When radiation of wavelength 300 nanometer falls on sodium, the electrons are emitted with kinetic energy this much, 1.68 into 10 to power 5 joule per mole. Asking the minimum energy which is required to remove the electron from the sodium. Minimum energy to remove the electron from the sodium, and then what is the minimum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? But very sorry, we can solve it now also. Actually, as little concept of this, I can explain it now only, so it will not create any problem, because we have to discuss the photoelectron effect afterward. Photoelectron effect, photoelectro effect you can say. बट उसमें ज़रा सी एक चीज़ बता रही हूँ मैं, जो कि फॉर्मूला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का नहीं लगेगा, बट ज़रा सी एक चीज़ बता रही हूँ. जैसे मान के चलिए आपके पास ये सोडियम की सरफेस है. ओके, दिस इज द सरफेस ऑफ सोडियम. व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर इस पे आके गिरी, ठीक है, जब इस पे आके गिरी तो उस लाइट का जो फोटोन था उसने इलेक्ट्रॉन सोडियम को हटा दिया, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को हटा दिया. तो कह रहा है कितनी एनर्जी लगेगी सोडियम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में. जितनी एनर्जी ऑफ फोटोन आएगी उतनी ही तो एनर्जी उसको मिलेगी, उसी से वो बाहर चला जाएगा. तो एक दफ़ा हिंदी में समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक लाइट है, उसकी वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 300 नैनोमीटर दी हुई है, और कह रहा है वो आपसे कि फोटो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है. जब ये लाइट आके पड़ी तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया. तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो उसमें यही होता है कि एक लाइट आती है किसी भी मेटल के ऊपर, जब वो लाइट आके पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस मेटल में से. जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है मूव करने के लिए. उस एनर्जी को अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट एनर्जी ऑफ मूवमेंट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो इस तरह से ये क्वेश्चन अपन देख सकते हैं इस क्वेश्चन को. तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, आप लिखिए Rm is to detect the energy of 300 nanometer photon. Rm is to detect the energy of 300 nanometer photon. हो गया. अब ज़रा सब लोग साथ रहो मेरे और बहुत अच्छी तरह समझना है इस क्वेश्चन को. देखो बेटा, हमारे पास वेवलेंथ 300, अभी हमें काइनेटिक एनर्जी से कोई भी मतलब नहीं है, ओनली Rm की एनर्जी हम निकालना है उस फोटोन की जिसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर. दिस मच ओनली आई हैव टू डू, जिसके लिए फॉर्मूला नॉर्मल लगेगा E = hc/λ, जो कि आप अभी भी निकाल चुके हो. h के बदले आप जानते हो 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 हो जाएगा. वेलोसिटी ऑफ लाइट यू नो 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर
पर सेकेंड और ये जूल इंटू सेकेंड। डिवाइड जब इस पूरे को करोगे वेवलेंथ से, अगेन द सेम थिंग, ये मीटर में है तो वेवलेंथ आपका 300 इंटू 10⁻⁹ ऑफ मीटर आ जाएगा। इतना हमने सब कर लिया है, इतना हमें पता है। ये मीटर से हमारा मीटर कैंसिल हुआ, ये सेकंड से हमारा पर सेकंड कैंसिल हुआ। आंसर हमारा आ रहा है जूल्स में, आंसर हमारा काय में आ रहा है? जूल्स में। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा, फिर से मैं लाइन पढ़ लूँगी अपनी कॉपी में, देखो ध्यान से। व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर falls on the surface of sodium, electrons are emitted with this. What is the minimum energy to remove an electron? This is बहुत बहुत important. तुम वहाँ पर अंडरलाइन करो, what is the minimum energy to remove an electron? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की what is the minimum energy to remove an electron? एक इलेक्ट्रॉन को हटाने की मिनिमम एनर्जी कितनी है? What is the minimum energy to remove an electron from सोडियम एटम? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? अब यहाँ पर ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पहली बात, ये जो तुमने निकाला है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन का ही है, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी है ये, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक और आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल दी हुई है ना। तो अभी तो अपन ये कर रहे हैं, फिर एक स्टेप अभी समझा रहे हैं, पहले इसका आंसर निकाल लें ताकि कंफ्यूजन दूर होए। तो एनर्जी आ रहा है, इसका आंसर अपने पास आएगा 6.626 इंटू 10⁻6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला है 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारी कौन सी एनर्जी है? ये हमारी एनर्जी ऑफ लाइट है या फोटोन है, जो कि आके एक फोटोन की एनर्जी है, क्योंकि पर मोल नहीं लिखा है मैंने, ये एक फोटोन की एनर्जी है मेरी। लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ेंगे, एक्चुअली ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद और अच्छा समझ में आएगा, लेकिन मैंने अभी दे दिया उसे, इकट्ठे में मैंने अभी दे दिया है, कोई टेंशन नहीं हो। तो मैं एक छोटी सी बात बता दूंगी तो तुम्हें ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या वो बात है? सुनो ध्यान से। जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन आती है, फिर से सुनना, ये सोडियम मेटल है, ये लाइट आ रही है वेवलेंथ 300 नैनोमीटर की, ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन आके से टकराई। ठीक है, सोडियम में इनर शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 और आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, बाहर वाला आउटर शेल का बाहर जाएगा। अब ये जो एनर्जी आ रही है, ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगी। इलेक्ट्रॉन को बाहर करना यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। कह रहा है ना, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज सोडियम एटम। आयोनाइज सोडियम एटम यानी उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। बाहर निकालेगी और फिर इलेक्ट्रॉन काय में, और कितनी एनर्जी चाहिए? वो जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है 2 पर्पस के लिए, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए और उसको काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। जैसे मैं सिंपल सी एग्जांपल बताऊं, अगर मुझे यहाँ से इस रूम से बाहर जाना है, कोई कहे कि बाहर निकलो इस कमरे में से, तो अगर मैं बाहर यहाँ से निकल के गेट पे खड़ी हो गई तो वो तो नहीं चाहिए ना। उसने कहा है आप बाहर निकलो, आप ऊपर जाओ या फर्स्ट फ्लोर पे जाओ। तो अगर कोई बंदा यहाँ से निकल के उस गेट पे खड़ा हो गया तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद कौन सी एनर्जी लग रही है ऊपर जाने के लिए? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं समझाना चाह रही हूँ, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझ में फिर से आएगा जब डेफिनेशन वगैरह पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज यूज फॉर 2 पर्पसेस। फर्स्ट, energy which is required to eject the electron plus kinetic energy. Again I'll repeat, energy of radiation is used for how many purpose? 2 purposes. First, energy required to eject the electron plus what? Energy plus kinetic energy. अब हमें क्या है प्रॉब्लम कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी काय में दी हुई है। देखो ये यूनिट काय में दी है काइनेटिक एनर्जी, जूल पर मोल में आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। ठीक है, और ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, लेकिन ये काय में निकाली है तुमने? जूल में। तो तुम्हें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल पर मोल में। कोई टेंशन नहीं है, चाहो तो यहीं एन लगा देते, वरना यहाँ लगा देंगे। तो अगर अपन इसको ऐसा लिखेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻19, ये 1 फोटोन के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया अगर मैंने एवोगाड्रो नंबर से, जो कि 6.023 इंटू 10⁻23 है, तो ये एनर्जी हो जाएगी पर मोल। और इसका आंसर हमारे पास आएगा 3.99 इंटू 10⁻3.99 इंटू 10⁻15 जूल पर मोल। आपके हिसाब से 11th क्लास के हिसाब थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन नहीं लगेगा जब आप यहाँ पढ़ रहा हो मुझसे। अभी मैं फिर से इसको रिवाइज करवा रही हूँ शुरू से, फिर से सुनो मेरी बात।
जो लाइट की एनर्जी आ रही है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, सब लोग दिमाग में रख लो, इट इज यूज फॉर हाउ मेनी पर्पसेस, 2 पर्पस, इट इज यूज फॉर हाउ मेनी पर्पस, 2 पर्पस, 1 पर्पस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, में कमरे में से जाके बाहर खड़े हो जाना, इसे कहते हैं अपने कमरा यानी एटम में से बाहर गई, प्लस मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना तो मुझे कौन सी एनर्जी लग रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगेन एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज यूज फॉर हाउ मेनी पर्पस, 2, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब चक्कर क्या है, हमें ये बीच वाली चीज मांगी है, हमसे वो मांग रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो ये लाइन जो लिखी है ना न्यूमेरिकल में, फिर से पढ़ रही हूँ, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम में से हटाने की कितनी एनर्जी लग रही है, जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी जानी जाती है, और भी उसके नाम है जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ाऊंगी मैं। तुम बताओ मुझे, अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं लिख रही हूँ एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, अगर मैंने लिखा एनर्जी ऑफ रेडिएशन तो इसका इक्वल टू क्या होगा, यह होगी इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आप बताइए, आपको एनर्जी ऑफ रेडिएशन आपने निकाली है जूल पर मोल में, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी जूल पर मोल में है, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, वरना आप कहोगे कि मैडम आपने क्यों मल्टीप्लाई करा, असल तो आंसर जूल में आ रहा था, लेकिन सिमेट्री करने के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी जूल पर मोल में मिल रही है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन भी जूल पर मोल में होना चाहिए और एनर्जी ऑफ रेडिएशन भी जूल पर मोल में होना चाहिए। अब तुम बताओ, अगर इस नंबर को काइनेटिक एनर्जी से माइनस करोगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, लेकिन वो काय में आएगी, जूल पर मोल में आएगी। फिर हम उसको एक इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। सोचो आप, इंग्लिश भी, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में इंग्लिश की भी इंपॉर्टेंस है, एन इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं आप डीएससी की स्पेशलिटी, इस तरह से न्यूमेरिकल्स की हम एनालिसिस करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, ऐसे नहीं कि छोड़ देते हैं उठा के लो न्यूमेरिकल कर लो, 10 बच्चे करेंगे क्लास में से, बाकी बच्चा बेचारा बैठा रहेगा, उसे कुछ नहीं आता जाता। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन टॉपर्स ओनली, वी आर फोकसिंग ऑन ऑल। टॉपर्स तो बिल्कुल टॉप पे रहता ही है, साथ में एवरेज और बिलो एवरेज भी बच्चा हमारे यहाँ निखर के ऊपर आ जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस इन माइंड। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितनी है, 3.99 इंटू 10 टू पावर 15 माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.68 इंटू 10 टू पावर 5। लेट मी चेक, इट इज 15 और 5, 1 मिनट, इट इज 5 ओनली, यू नो, इट इज sorry 5, it is not 15, it is 5 only, okay, this is 5 only. So what is the answer you are getting from here? You will be getting the answer after minus करके 2.31, you will be getting the answer 2.31 into 10 to power 5 जूल पर मोल। अब ये बात ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज, उसको आयोनाइज करने की एनर्जी मांग रहा है। ये लिखा है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज या टू रिमूव द एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम एटम। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो एनर्जी 1 मोल की है और हमें चाहिए एनर्जी, किसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हमने, मतलब हम जैसे ना छुपन छुपी वाला खेल होता है, पहले जूल से 1 इलेक्ट्रॉन के लिए थी तो हमने उसको पर मोल करी, अब पर मोल में है तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन में करना है। पहले हमने क्यों पर मोल में करी, क्योंकि हमें यूनिट सेम रखना है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल में है। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि मैडम इसको आप कर लो ना शुरू से ही फॉर 1, तो ऐसे कर लो, लेकिन सिंपल मेथड लगा कर दिया। इसको जूल पर मोल में थी, इसको भी जूल पर मोल में करा, ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन थी, ये काइनेटिक एनर्जी थी, दोनों को माइनस करा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो एनर्जी आ गई विच इज रिक्वायर्ड टू व्हाट, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी हमारे पास आ गई, बस बढ़िया। अब ये आ गई, अब स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ये पर मोल है तो इसको लेंगे और डिवाइड कर देंगे अवोगाड्रो नंबर से। अब ऐसे याद कर लो, मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ एक फॉर्मूला दे रही हूँ, जैसे कुछ बच्चों को कभी कभी ऐसी चीज़ें समझ आने में दिक्कत होती है, तो मैं तो तुम्हें एक रूल दे देती हूँ। अगर आप ध्यान से सुनो,
एक इलेक्ट्रॉन से पर मोल में करना चाह रहा हूँ, सॉरी हाँ, ये जूल एक फोटोन से पर मोल में करना चाह रहा हो तो मल्टीप्लाई कर दो अवोगाड्रो नंबर से, और अगर जूल पर मोल से आप जूल में कन्वर्ट चाह रहे हो तो डिवाइड कर दो अवोगाड्रो नंबर से। टू कन्वर्ट फ्रॉम जूल पर मोल टू जूल, लाइक फॉर 1 मोल से एक इलेक्ट्रॉन के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। सो यू विल बी गेटिंग द आंसर 3.84 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। 3.84 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। कोई भी बच्चा न्यूमेरिकल से घबराना नहीं, क्योंकि अगर आप घबरा गए हैं तो आप क्विट करोगे तो आपसे ज़्यादा बुज़दिल कोई भी नहीं होगा। क्विट करने वाला इंसान हमेशा बहुत वीक होता है और स्ट्रॉन्ग फेस करने वाला इंसान हमेशा टॉप पे रहता है। क्लियर और नॉट? सो ये आपको हो गया एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। एक और चीज़ लास्ट में उसने मांगी है जो अपन लिख चुके हैं पहले भी, वो क्या चीज़ थी? व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड। कितनी मतलब वेवलेंथ लगेगी इलेक्ट्रॉन के इमिट होने में? तो कोई बात नहीं, आपने एनर्जी तो निकाल ही ली ना, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी निकाल ही ली है। अब वेवलेंथ का कौन सा टेंशन है? वेवलेंथ तो सबको आती है, आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ कर देते हैं अपन। आपने पढ़ा है कि E इक्वल टू hc/λ है। वेवलेंथ कितनी लगी? अभी एनर्जी पता चल गई, निकालने की एनर्जी 3.84 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल है एक इलेक्ट्रॉन की। अब कह रहा है वेवलेंथ भी बता दो, चलो बता दो वेवलेंथ, कौन सी बड़ी बात है। वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? hc/E है ना, तो h हमें रट गया है इतने साल। देखो न्यूमेरिकल में कितनी दफ़ा आ गया, आज ही आपका h कितनी दफ़ा आ रहा है? -34 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट आपका 3 इंटू 10 टू पावर 8, और E आपका कितना हो जाएगा? ये जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन अभी निकाली थी आपने 3.84 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं, मुझे भी कोई न्यूमेरिकल देगा ये वाला तो मुझे लगेगा टाइम, क्योंकि इतना आसान नहीं है कह दिया कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, लेकिन करना है। अरे लिया है यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज योर मेन सब्जेक्ट और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एज योर मेन सब्जेक्ट, मेहनत तो करना पड़ेगी ना बेटा, जब भी जाकर तो दूसरे से अलग हो गए। अब बैठ गए, अब सुन ली वीडियो और रख दी, या कभी दिल चाहा तो सुनी, कभी दिल चाहा तो नहीं सुनी, ऐसे काम नहीं चलने वाला। काम उस बच्चे का चलेगा जो बच्चा पूरा मेरे साथ है। कितने बच्चे हैं 12th में मैं बता रही हूँ, इतने सिंसियर हैं कि मेरे सारे टेस्ट दे रहे हैं, रजिस्टर्ड बच्चे बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं। कुछ बच्चों को तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन भी गलत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान ली है कि इस टाइम जहाँ मुझे टाइम मिल रहा है घर में बैठ के मैं कुछ करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। सो प्लीज रिमेंबर दिस, द आंसर ऑफ दिस लास्ट थिंग इज 517 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। 517 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। और अगर कभी कह देता कि वेवलेंथ नैनोमीटर में निकालो तो अपन सिर्फ 517 लिखते हैं ना, क्योंकि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। अगर आप हमें बेसिक चीज़ें आती हैं तो हम कर लेंगे न्यूमेरिकल। अब आपके सामने पूरा न्यूमेरिकल है, बहुत ही लेवल वाला न्यूमेरिकल है। इसमें मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाऊंगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत सी आपको ऐसी चीज़ें पता चली हैं जो कि मतलब आपके आगे भी काम आने वाली हैं। अब मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज करवाऊंगी इस न्यूमेरिकल को फटाफट, और फिर अपन क्लास को ख़त्म करेंगे। अगले क्लास में अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के फर्स्ट और सेकंड था। थर्ड वाला थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उसमें लग गया था, तो कोई बात नहीं। आप कहोगे मैडम पढ़ाए बगैर क्यों दे दिया न्यूमेरिकल? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सी बात है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी सिंपल सी बात बता दी। ये मेरा हाथ सोडियम मेटल है, इसमें जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन आ रही है वो 2 पर्पस के लिए है। एक, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना, बाहर निकाल के गेट तक ला के फिर उसको काइनेटिक एनर्जी देना ताकि वो उड़े आगे चला जाए। ठीक है, ये जैसे मैं यहाँ से निकली वहाँ दरवाजे पे खड़ी हुई, ये एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव मी फ्रॉम द एटम। जब मैं नीचे से ऊपर गई, दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ आ गई। स्टार्टिंग में हमने एनर्जी ऑफ रेडिएशन निकाली, हमें वेवलेंथ दी हुई थी तो हमने जूल में निकाली थी। हमें उसको जूल पर मोल में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा, यानी हमने मल्टीप्लाई कर दिया अवोगाड्रो नंबर से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मुझे जूल पर मोल में दी गई थी। अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँगी तो दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। तो एनर्जी रिक्वायर टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये अपन ने स्टेप करा था, एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जी मेरी आई थी जूल पर मोल में आ गई थी, क्योंकि मैंने जूल पर मोल में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन की इंग्लिश बड़ी स्पेशल थी, एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हटाने की। इस चक्कर में मैंने जब एन इलेक्ट्रॉन हटाना था तो मैंने क्या करा, उसको जूल पर मोल को मैंने जूल में लाना था, मैंने डिवाइड कर दिया अवोगाड्रो नंबर से। ये मेरी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई,
बस यहाँ से मेरा काम हो गया। फिर उसने कहा कि वेवलेंथ भी निकाल दो, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी वेवलेंथ भी निकाल दो। तो सिंपल फॉर्मूला लगाया E = hc/λ। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह। इनको फिर से रिविजिट करना, फिर से इनको पढ़ना, इनको अपने आप इनके आंसर आखिर वाले निकालना, परफेक्ट हो जाओगे। और अगली क्लास में अपन पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, एनी थिंग विच इज़ लेफ्ट नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ उसमें पढ़ा देंगे। और जैसे मैंने पहले भी बोला है, जैसे आपको पता है ये बात कि आपके पास ग्रुप में डाल चुकी हूँ मैं, प्लीज़ रजिस्टर्ड योर सेल्फ फास्ट। वाई आई एम टेलिंग यू, ये नहीं सोचना कि मतलब रजिस्ट्रेशन तो बहुत मेरे पास थैंकफुली है और बहुत दिनों में मैं मतलब ये फ्रीज भी कर दूंगी, क्योंकि अगर ऑफलाइन होगा तो मैं यकीनन डिस्टेंस से मुझे बिठाना है। तो लिमिटेड सीट है इस साल, और तुम जितना लेट करोगे तुम्हारा नुकसान है। पहली बात हो सकता है कि आप 2 महीने बाद आए तो आपको सीट ही नहीं मिले, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि आप बिला वजह अपने आप को पीछे कर रहे हो 11 में। रजिस्टर्ड क्लासेस में आपको जो पढ़ाया जाएगा वो प्राइवेट होएगा, आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला। तो वाई यू आर लेट, प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ very fast as soon as possible in the STEAM faculty, in the STEAM group of DSE classes. With this code, I want to finish the class. Goodbye.